All of you and dear viewers on the Facebook page of Training and Placement Cell GGUST Hisar. I welcome you all in this online panel discussion on a very important topic, mental well-being in age of COVID-19. And in our today's discussion, we are having a very expert galaxy of panelists. So first of all, I would like to introduce our today's panelist. So I welcome Professor Manju Agrawal ji, Professor of Psychology and Dean Student Welfare, Amity University, Lucknow campus. Dr. Manju Agrawal ji is a psychotherapist, hypnotherapist, family constellation therapist, a social entrepreneur, and an educationist with 38 years experience. She is former director of Mahila Samakhya, Uttar Pradesh. She is bestowed with a number of important awards, fellowships like Outstanding Women Achiever Award 2017, Royal Netherlands Fellowship 2018, Women Leadership Fellowship 2000. She represented India twice at United Nations for Development Issues in 2003 and 2005. She has 2 published scales and 2 books to her credit. She has many publications in national and international journals, presentation in international national conferences. She has conducted more than 125 training programs for more than 4,000 hours in India and abroad. So I welcome Professor Manju Agrawal ji. Welcome a lot. Our second panelist is Dr. Narendra Gupta ji, who is MD in psychiatry. He did his MD in 2001 and currently he is running his own hospital and serving as consultant psychiatrist in very renowned Gupta Hospital, Hisar. Having core competency in behavioral and psychotherapy for all age groups, Dr. Gupta is rendering his services as member of Juvenile Justice Board, Hisar, director in Apollo Education Society, head of Synergy Child and Adolescent Guidance Center. He is also member of Indian Psychiatric Society, Indian Medical Association, Indian Association of Social Psychiatry, and many more. We welcome you, Dr. Saab, on behalf of Guru Jambheshwar University, Hisar. Our third panelist is Dr. Rimpal Mittal. Welcome, Rimpal Mittal ji. Rimpal ji is from Shashwat Nature Cure Health Center, which is being run since last 11 years. Rimpal ji has done awareness programs under Mahila Swasthya Bachao Abhiyan in rural sector. With the help of naturopathy, she is doing tremendous work on every mental and physical disease. She has done research in the field of diabetes and female hormones problem and found that diabetes patients are able to manage their sugar level with only yoga and natural diet treatment. She has cured a number of patients through meditation, yogic exercise, and basic naturopathy treatments. So welcome, Dr. Rimpal Mittal ji. And our fourth panelist, our own colleague, Professor Sandeep Rana ji is with us. He is Professor of Applied Psychology in our Guru Jambheshwar University Department of Applied Psychology. Having more than 18 years of teaching experience, Professor Sandeep Rana ji has served at all important positions in the university system, ranging from Proctor, DSW, NSS officer, chairperson, dean, and whatnot. Currently, he is working as Dean of Colleges and he has started a number of courses also. He is recipient of Bharat Jyoti Award by India International Friendship Society. He has also got award from Government of Haryana for his contribution in promoting blood donation spirit in the university. So today we are having this beautiful galaxy of panelists. So let's start our today's discussion. आप सभी को मालूम है कि ये जो इस समय कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और इससे निजात पाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी और अपने नेशन के लेवल पे भी लॉकडाउन की व्यवस्था की गई। अब हम काफी दिनों से लॉकडाउन में रहे एंड नाउ ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनलॉकिंग प्रोसेस। और ये जो लॉकडाउन का सारा टाइम रहा और अभी भी कोविड-19 के समय में जो मेंटल वेलबीइंग है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू बनकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनकर आया है और दैट्स व्हाई वी हैव चूजन दिस टॉपिक एज आवर today's topic of discussion. So
लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो मैं प्रोफेसर मंजू अग्रवाल जी से शुरू करना चाहूँगा, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करें, ऐसा निवेदन है उनसे। तो मंजू जी, इन दिस पेंडेमिक टाइम when world scientists are busy in developing vaccine of coronavirus, everyone is discussing how many people have become COVID positive and how many have recovered. In this time, is mental health really worth discussion? Should people pay attention towards this topic of mental health? ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डॉक्टर मंजू आप क्या कहेंगी? नहीं, ये टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा ख्याल से लोगों को ये रियलाइजेशन भी है, जिसकी वजह से सरकार ने भी इसकी ओर थोड़ा इनिशिएटिव लिया है, बट जितना इनिशिएटिव लेना चाहिए वो नहीं लिया है। और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कॉल्स बढ़ गए हैं पेशेंट्स के या क्लाइंट्स के, और बहुत सारे इधर कॉल्स आए जो लोग परेशान हैं एंजाइटी से। हालांकि ये मैं कहना चाहूंगी कि जिसके पास जो है वो बढ़ गया है, जिनके पास क्रिएटिविटी है उनकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है, जिनके पास पॉजिटिविटी है उनकी पॉजिटिविटी बढ़ गई है, जिनके पास नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी है उनका वो सब भी बढ़ गया है। और वैसे भी ये चैलेंजिंग टाइम है सबके लिए, ऐसा नहीं है। जो इवन बहुत पॉजिटिव थे उनको भी इस समय बहुत सारी घबराहटें, बहुत सारी परेशानियां होने लगी हैं। और आगे मैं कुछ कहूँ उसके पहले मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, विच विल टेक 1 मिनट। कि एक शहर में एक छाया जा रही थी, वहां एक फकीर बैठा था, उसने वो छाया पकड़ ली, उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं मौत हूँ। तो बोला यहाँ मेरे शहर में क्यों आई हो? तो उसने कहा मुझे 1000 लोगों को ले जाना है। तो बोला कि नहीं नहीं तुम मत ले जाओ। बोले नहीं, वो तो ले जाना है, वो डेस्टिनी है, आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे ले जाने दीजिए। 1000 लोग, 2000, 3000, 5000 तक हो गया। अब ये फकीर बड़ा परेशान कि किस दिन मुझे ये दिखे और मैं इसको पकड़ूं और इससे पूछूं कि तुमने तो 1000 का वायदा किया था, अपना वायदा तोड़ दिया, तुमने झूठ बोला। बाई चांस उसे एक दिन वो छाया दिखी, उसने फिर से उसको पकड़ा और पूछा कि भाई ये क्या, तुमने तो जो प्रॉमिस किया था अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो बोले मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा, मैं तो 1000 ले गई थी, बाकी 4000 जो है वो डर से मर गए। राइट। तो ये जो मेंटल हेल्थ है, जितना इस पे ध्यान देना चाहिए बहुत बहुत कम दिया जा रहा है। और हम लोग एक स्टडी भी, बहुत सारी स्टडीज हो रही थी, मेरी भी इच्छा थी एक स्टडी करने की कि जिनका पॉजिटिव लाइफ ओरिएंटेशन है उनकी रिकवरी कितनी है और जिनका नहीं है उनकी रिकवरी कितनी है। अभी मैं कर नहीं पाई हूँ, बट मैं दावे से कह सकती हूँ कि रिकवरी रेट में, फॉलिंग सिक के रेट में बहुत फर्क पड़ेगा यदि आप पॉजिटिव हैं, एंग्शियस हैं, फियरफुल हैं। आपका मेंटल स्टेट क्या है उससे आपकी डायरेक्ट इम्यूनिटी का कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है इम्यूनिटी का। फिजियोलॉजी की इस समय बात करने का समय नहीं है, पर डायरेक्ट कनेक्शन है, आप चाहे के गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। और किस तरह से ब्रेन सीक्रेशंस, हार्मोन्स वगैरह, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट होते हैं और वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो यदि आप इस तरह की मेंटल स्टेट में रहेंगे तो उसका असर निश्चित रूप से नेगेटिव पड़ता है। और इसी संदर्भ में मैंने इधर कुछ काम भी किया, जब बहुत सारे क्लाइंट्स के मेरे पास फोन आने लगे तो फिर मैंने एक उनके लिए मैंने कहा कितनी बार हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और कितनी बार वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, इट्स अ टाइम इशू, फाइनेंस इशू, एवरीथिंग। तो मैंने फिर एक रिकॉर्ड किया उनके लिए, सेल्फ मेडिटेटिव टॉक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोरोना। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अब मैम उसको रोज सुनते हैं तो हमें उससे बहुत रिलीफ मिलता है और हमें लगता है कि हाँ थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा, मैंने पूछा उनसे कि आपको क्यों एंजाइटी हो रही है, क्या आपको लग रहा है? तो उनका कहना था कि मुझे लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, हमारे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, कहीं सेपरेशन ना हो जाए, कहीं की देयर वाज अ लॉट ऑफ सेपरेशन एंजाइटी। और दूसरा जो था वो उनका फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिल रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी बहुत एंजाइटी थी। तीसरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जिन घरों में हार्मनी नहीं है, जिन घरों में वायलेंस है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डबल हो गए हैं इस समय, एनसीडब्ल्यू ने भी बोला है कि हमारे पास डबल केसेस आ गए हैं। तो जहां जिन होम्स में वायलेंस था उनमें वायलेंस बहुत बढ़ गया।
बिकॉज जब फ्रस्ट्रेशन हुआ, एंजाइटी बढ़ी, डिसहार्मनी हुई, तो वहाँ वायलेंस भी बढ़ गया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और बच्चे जब मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछेंगे तब मैं उनके जवाब में कुछ उत्तर और रिस्पांस देना चाहूंगी कि कैसे डील करें। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी से हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब इन दिनों में जैसे हम मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर पेशेंट्स आते हैं, या कोविड-19 की वजह से किस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी हुई है, मतलब किस किस तरह की केसेस, किस किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं? Certainly, there has been an increase in the cases of anxiety and depression when all this started about 3 months back. And I'm in practice for last 20 years. So there has been a sudden increase in the number of patients. जो पेशेंट्स मेरे ठीक हो गए थे एंजाइटी के, वो वापस आए, या जो लोग ऑलरेडी एंजाइटी से सफ़र कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट पे थे, उनकी एंजाइटी लेवल बढ़ गया। और बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि गांव के जो लोग हैं, इवन ओल्ड एज, जो ऑलमोस्ट इलिटरेट हैं, उनमें से काफ़ी लोग आए जिन्होंने ये वर्ड सुना कोरोना मीडिया से या किसी और डिस्कशन से, तो वो लोग भी कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कोरोना ना हो जाए। तो इस पेंडेमिक का एक्चुअल में ये पेंडेमिक है जो हमारे रूरल एरियाज़ में और इलिटरेट पॉपुलेशन तक, जिसके बारे में लोगों को जानकारी पहुंच गई। अनफॉर्चुनेटली इसका फियर ज़्यादा है, बिकॉज एज ए मेडिकल डॉक्टर आई नो कि इसमें डेथ रेट 2% से भी कम है, और जिन लोगों के लिए फैटल होता है वो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या ओल्ड एज हैं, या किसी न किसी पुरानी डायबिटीज़ या कार्डिक प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं। तो जितना इसका फियर है उतना ख़तरनाक है नहीं, बट एक तरह का ये पूरा पॉपुलेशन के अंदर जो स्प्रेड हो गई इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से शुरुआत में मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आए। ऑलमोस्ट 10 से 15 पेशेंट सिर्फ इस डर से आते थे, इस एंग्जाइटी से आते रहे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग शायद इसके साथ जीना सीख रहे हैं और एंग्जाइटी लेवल कुछ कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना जितना पेंडेमिक है, तो उसका जो फियर है वो भी उतना ही बड़ा पेंडेमिक का रूप लेता जा रहा है। रिम्पल मित्तल जी क्या कहती हैं इस बारे में, क्योंकि आपके पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं। रिम्पल जी प्लीज अनम्यूट एंड रिस्पॉन्ड। हाँ जी सर, इसमें यही कहा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, प्लीज गो अहेड। इस बारे में यही कहा जाएगा कि जितना पेंडेमिक और जितना फियरफुल बताया जा रहा है उतना नहीं है। यू कैन टैकल दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि हमें अपने लेवल पे भी बहुत कुछ करना है इसके लिए। जितना हम ज्यादा पेपर्स एंड मीडिया के द्वारा फियरफुल हो रहे हैं, उतना नहीं। अगर हम अपनी मुट्ठी में लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका सॉल्यूशन। रही बात कांटेक्ट होने की और अदर जो रीजंस हैं इसके, उनको अगर हम बरकरार रखें तो। बहुत बढ़िया। तो प्रोफेसर संदीप राणा जी, जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फीलिंग है इस पेंडेमिक टाइम में वो फियर है, लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक बहुत ही बारीक लाइन है। एक फियर है जो हमें इस बात के लिए मोटिवेट भी करता है कि हम मास्क लगाएं, हम अपने जो हैंड हाइजीन्स है या रेस्पिरेटरी हाइजीन्स है उनको ठीक करें, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। फियर का एक ये प्लस पॉइंट भी है। और दूसरी तरफ जो फियर है उसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें भी हो रही है। तो वो जो सिल्वर लाइन है बीच की, वो क्या है? कैसे हमें इस दिशा में जाना है कि उस दिशा में जाना है, कैसे डिसाइड करें? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का धन्यवाद करता हूं कि इतना रेलेवेंट टॉपिक जो आज के समय में बहुत जरूरी है, उस पे हम सबको डिस्कशन के लिए और स्टूडेंट्स से या और लोगों से इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी दी। वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मलिक एंड ऑल द एसोसिएट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। थैंक यू। दूसरा जो है कि जैसे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं।
एक परिस्थिति बनी है अनिश्चितता की, कंफ्यूजन की, फियर की, और क्या होगा आगे पता नहीं है, और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हुई है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम्स, जैसे अभी डॉक्टर मंजू ने भी बताया, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने भी बताया, इस तरह की चीजें सामने आई हैं देखने के लिए। और जैसे ये पॉइंट था कि मेंटल हेल्थ पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज आई हैं। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च था, स्पेन की एक यूनिवर्सिटी ने किया, कि जहां मेंटल हेल्थ बेहतर है, अगर हम स्ट्रेस में हैं, कंफ्यूजन में हैं, एंजाइटी में हैं, फियर में हैं, दुविधा में हैं, तो उससे हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी कमजोर होती है और उससे रिकवरी रेट पे फर्क पड़ता है। तो अभी एक लेटेस्ट रिसर्च था, वो इंटरनेशनल सर्वे उन्होंने किया, कि जहां मेंटल हेल्थ बेहतर है, पॉजिटिव है, साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छा है, वहां साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी बेहतर है और लोगों का रिकवरी रेट बेहतर है, बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी वहां ज्यादा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये बहुत वर्थ रेलिवेंस का टॉपिक है कि हम साइकोलॉजिकल वेलबींग की, मेंटल वेलबींग की बात करें। ये दो एस्पेक्ट्स में हमें फायदा करता है। एक, जिनको दिक्कत होगी उनकी रिकवरी में इससे बेहतरी होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी का फिजिकल इम्यूनिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम मन से स्ट्रोंग हैं, मन से मजबूत हैं, अंदर से ताकतवर हैं, सकारात्मक हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी उसका बेहतर फर्क पड़ता है। क्योंकि हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं है, जैसे WHO भी डिफाइन करता है, इट्स ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हमारी मेंटल वेलबींग हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करती है। बिल्कुल। सेकेंड बात जो आपने कही फियर के कॉन्टेक्स्ट में, कि फियर की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है, अलर्टनेस की जरूरत है, माइंडफुल होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कि डर का मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन अवेयरनेस का, माइंडफुलनेस का, जागरूकता का मोटिवेशन बेहतर काम करता है। तो आज हमें इस बात पे चर्चा करने की जरूरत है कि कैसे हम इस वेलबींग को बेहतर कर सकते हैं, और जागरूकता से, अवेयरनेस से, माइंडफुलनेस से, सकारात्मक सोच से, अपने पे अपने कमांड से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी टिप्स का अगर हम ध्यान रखें, मैं 2-3 पॉइंट बता के फिर आगे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले जरूरी है कि हम इस बदले हुए परिवेश को एक्सेप्ट करें। परिस्थितियां बदली हैं, तो यहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है एक ही तरह से जीने की, लेकिन चेंज इज द मोस्ट स्टेबल फिनोमिनन इन दिस वर्ल्ड। बदलाव तो होगा, कभी सिचुएशंस में होगा, कभी रिश्तों में होगा, कभी हमारी जो है हमारी मानसिक या शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसमें होगा। बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है, बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड सा बदलाव हुआ है, सबसे पहले हम इसको एक्सेप्ट करें। सेकेंड पॉइंट, उस एक्सेप्टेंस के बाद जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है हमारी सोच में और बिहेवियर में, हम उसको करें जागरूकता के साथ। तीसरी बात ये है कि हम एक अपना रूटीन, एक दिनचर्या निश्चित करें कि हमारा ये शेड्यूल है। ऐसा नहीं कि हम रफ टफ सा रहें। अगर हम शेड्यूलिंग कर लें अपनी दिनचर्या की, तो बहुत हेल्प मिलती है उसमें। जो भी एक्टिविटी करें अवेयरनेस के साथ करें, अलर्टनेस के साथ करें, माइंडफुलनेस के साथ करें। चाहे हम खाना खाएं, वॉक करें, नहाएं, ईटिंग में कुछ भी है, अगर वो जागरूकता के साथ होगी तो ओवर थिंकिंग कम होगी, नेगेटिव थिंकिंग हमारी कम होगी। जैसे डॉक्टर मंजू ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जिसके पास जो था वो बढ़ गया, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ इसमें कि जो चीज हमारे पास अच्छी है, ग्रेटिट्यूड है, उस करें, उसके लिए एक्सप्रेस करें हम। बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत बेहतर है। जो हमारे पास है उसको सेलिब्रेट करें, उसके लिए थैंकफुल हो, उसको अप्रिशिएट करें, तो चीजें बेहतर होती हैं। और हम फिजिकली लोगों से बहुत ज्यादा नहीं मिल सकते, तो हम फोन के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से सोशली लोगों से कनेक्ट करके रहें, शेयर कर। जैसे डॉक्टर रिम्पल ने बताया कि बहुत ज्यादा जो है हम कोरोना 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 की न्यूज ना पढ़ के कुछ सकारात्मक लिटरेचर पढ़ें, पॉजिटिव इंटरेक्शन करें। तो कई बार जब चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, वही व्यक्तित्व के विकास की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन परिस्थितियों में एक अपॉर्चुनिटी मिली है हम सबको कि कैसे बाउंस बैक करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। और मेंटल वेलबींग को बेहतर रखना जरूरी है अगर हम फिजिकली फिट रहना चाहते हैं।
इकोनॉमिकली फिट रहना चाहते हैं या सोशली फिट रहना चाहते हैं, ओवरऑल कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली फिट। सो राइटली आंसर्ड प्रोफेसर संदीप राणा जी। मुझे जो दो बातें समझ में आई है, एक तो ये है कि जो हमारा फियर फुल होना है उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करके वी शुड बी अवेयर, वी शुड बी माइंडफुल एंड वी शुड बी बेसिकली अलर्ट। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो प्रोफेसर राणा जी ने कही कि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो Yes, आज के yes. संदर्भ में जो जितना मेंटली फिट रहेगा या साइकोलॉजिकली जितना फिट रहेगा उतना उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ने वाले हैं। मैं डॉक्टर साहब बीच में 1 सेकंड के लिए हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में एक बात और बहुत कही इंपॉर्टेंट, जो यहाँ आज के संदर्भ में रेलिवेंट है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि ह्यूमन रेस सभी रेसेस में इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि अडेप्टेबिलिटी की स्किल सबसे ज्यादा ह्यूमन रेस में थी। हम बिल्कुल। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना जानते हैं, गिर के उठना जानते हैं, बाउंस बैक करना जानते हैं। इसलिए ह्यूमन रेस इस यूनिवर्स की सभी प्रजातियों में सबसे ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम में अडेप्टेबिलिटी की स्किल है और हम इस सिचुएशन में भी बाउंस बैक करेंगे। अभी मैं मंजू जी के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर मंजू जी, जैसे अभी संदीप राणा जी ने भी कहा कि हम एक शब्द काफी दिनों से, जब से ये कोरोना चला है तब से सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। शुरू में सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज हुआ, परंतु आप जैसे विद्वान लोगों ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो आप लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है। और मैंने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी है जहां ये बताया गया है कि इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम में सोशलाइजेशन जो है ये बहुत जरूरी है। यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हो, परंतु सोशलाइजेशन की बढ़ने की जरूरत है इस समय में। जितना ज्यादा हमारा सोशलाइजेशन बढ़ेगा उतना हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो इस बारे में डॉक्टर मंजू जी आप क्या कहेंगी? इसके लिए कोई सोशलाइज होने के क्या टिप्स हो सकते हैं इन दिनों में, उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। म्यूट। हाँ, हाँ जी। ओके, यस। जो आपने बात उठाई, मेरा ख्याल से वो सोशल सपोर्ट एज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप राणा डेफिनेटली इस बात को वो करेंगे कि सोशल सपोर्ट बहुत बड़ा बफर है स्ट्रेस का, बहुत बड़ा बफर है। और ये एक नहीं, सैकड़ों हजारों स्टडीज हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि जब सोशल सपोर्ट होता है तो हर तरह की रिकवरी, डिजीज से रिकवरी, डिप्रेशन से रिकवरी, एंजाइटी से रिकवरी, हर चीज जल्दी होती है, बेहतर होती है। तो हम लोगों ने सचमुच ये उठाया था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की बात ना करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करिए। एंड मुझे इस बात से खुशी है कि अब काफी लोग इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलने लगे हैं। तो सोशलाइजेशन मुझे लगता है कि अगेन जो लोग बढ़ाना चाहते हैं उन्होंने बहुत बढ़ाया है। अभी लोग जो है अपने अपने जीवन में भी बढ़ाया है और एक्सटर्नल जीवन में भी बढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल अपने जीवन की यदि बात करें तो लोग रूमिनेशन या रेमिनिसेंट ऑफ ओल्ड नाइस गुड मेमोरीज, लोग अपने एल्बम्स निकाल रहे हैं, अच्छी फोटोज देख रहे हैं, बच्चों के संग बैठ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखो ये फोटो ऐसी थी, ये ऐसा है, वैसा है। एंड दे आर गेटिंग कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन एंड स्पाउस, उनका कनेक्शन उस तरह से बढ़ रहा है। फिर मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चैलेंजेस लोग दे रहे हैं। तो चैलेंजेस में लोग, किसी ने डांस का चैलेंज दे दिया, किसी ने योगा का चैलेंज दे दिया, किसी ने साड़ी पहनने का चैलेंज दे दिया, बहुत तरह के चैलेंजेस, एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग और अपने अपने वीडियो बना के लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इधर वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं, यूट्यूब चैनल नए नए शुरू हो गए हैं। तो लोगों की क्रिएटिविटी मैं देख रही हूँ बढ़ी है, और लोगों का कनेक्शन, बहुत सारे लोग जिन लोगों से हमने कभी बात नहीं की थी उनसे फोन कर रहे हैं। फिर अभी एक तो सब लोग इस समय टेक्नोलॉजी इज रियली सेविंग आवर लाइव्स अ लॉट। टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग में मदद की है। तो प्रताप सिंह जी, आपके लिए, जो आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, एंड और जैसे संदीप जी ने कहा था, आपके और हम पूरे यूनिवर्सिटी के शुक्रगुजार हैं कि आपने इसके ऊपर टॉपिक रखा और मुझे आने का मौका भी दिया। तो बहुत सारी, जैसे हमने 31 मार्च को मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे था। उस समय पहली बार हम लोग ने जूम पार्टी की, और जूम पार्टी में सारे बच्चों ने, जो भी उसकी पार्टी में जुड़े, उन्होंने हाउजी खेली,
सबको डांस चैलेंज था, सबने डांस किया, केक भी कटा, सब कुछ हुआ एंड इट वाज अ वेरी नाइस पार्टी। और उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे फैमिली बहुत दूर दूर है, सब अलग अलग शहरों में, जहां भी जिसके यहाँ जो फंक्शन हो रहा है पहले हम लोग नहीं जुड़ते थे उससे, अभी हम जूम के थ्रू पूरा फंक्शन देखते हैं, पूरे फंक्शन में जुड़ के बैठते हैं। सो सोशल कनेक्शंस बढ़े हैं लोगों के, फोन कॉल्स बढ़े हैं, जूम वीडियोस बढ़े हैं, और लोग बहुत तरह की क्रिएटिविटी, पोएम्स, एक आध लोगों ने पोएम्स अपनी अपनी लिख के भेजी, गाने बना के भेजे, हारमोनियम बजा के भेजा। सो इट्स ऑल हाउ यू थिंक। एंड मेरा ये मानना है कि जब आपको एंजाइटी हो तो एंजाइटी किस लिए होती है, कहीं ये ना हो जाए। तो जैसा अभी डॉक्टर संदीप ने भी कहा, हमें अलर्ट होना है, इतना अलर्ट होना है कि हम प्रिकॉशन लें। बट अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछें, अपनी लैंग्वेज चेंज करें, एंड इफ वी आस्क कि ओके दिस कोरोना, मुझे ये डर लग रहा है कि कोरोना मुझे हो सकता है, सो व्हाट शुड आई डू टू प्रिवेंट? सो चेंज योर लैंग्वेज, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस आई कैन टेक। सो एक अवेयरनेस के लेवल तक आप एंग्शियस होना जरूरी होता है, बहुत जरूरी है एंजाइटी, बट उस लेवल तक जिस लेवल तक वो आपको सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है, उसके बियॉन्ड वो घातक होती है। सो सर्टेन लेवल ऑफ एंजाइटी, एंड अपनी अगर आप लैंग्वेज चेंज कर दे, व्हाट ऑल कैन आई डू, हाउ कैन आई हेल्प अदर्स। आई नो अ 65-70-year-old person who is running a small किराना शॉप, और वो रोज जितने भी मजदूर जब माइग्रेट कर रहे थे तो उनके यहाँ वहां जाते थे, खाना ले लेके और बांटते थे। और मैंने उनसे पूछा, आपको और आपके परिवार को डर नहीं लगा कि आप कैच कर सकते हैं, बिकॉज ये तो बहुत ही रिस्की है? तो उन्होंने कहा नहीं, जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो परिवार वाले भी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा तुम्हें। सो दिस बिलीफ दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, देन यू डू योर मेडिटेशन, डू योर व्हाइट लाइट मेडिटेशन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको प्रोटेक्ट करने के। ठीक, बहुत बढ़िया मैडम। रिम्पल जी, एक सवाल, जैसे अभी संदीप राणा जी ने भी बीच में हिंट किया कि ये जैसे इस समय लॉकडाउन का, वैसे तो लॉकडाउन खत्म हो गया परंतु स्टूडेंट्स के लिए अभी भी लॉकडाउन है, स्टूडेंट घरों पे ही है, तो ऐसे में जो बोरियत है, बोर्डम जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत प्रिवेलिंग इशू है आज के समय में। और बोर्डम खत्म करने के लिए शायद हमारी रूटीन का होना बहुत जरूरी है। तो किस तरह की रूटीन हमारे स्टूडेंट्स की हो जिससे कि उनका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, दे आर ओवरऑल दे आर हेल्दी, ऐसा इंश्योर किया जा सके। तो डॉक्टर रिम्पल जी से मैं पूछूंगा और उसके बाद मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी के पास आऊंगा कि हमारी रूटीन किस तरह की होनी चाहिए इन दिनों में। हाँ जी, इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त मेरे पास जो पेशेंट्स की क्वेरीज ज्यादा आ रही हैं, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। क्यों? क्योंकि फियर। जैसा कि हम जानते हैं, माइंड द सोर्स ऑफ एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स। तो इस स्लोगन को देखते हुए जो इस वक्त फियर एंड एंजाइटी बढ़ रही है, उसके लिए नेचुरोपैथी के जरिए, योगा के जरिए और डाइट के द्वारा हम क्या हेल्प ले सकते हैं। मोस्ट वंडरफुल काम करता है नेचुरोपैथी, डाइट और आपका ये योगा। इस वक्त जिस योग वर्ड को 60 से 70% लोग जानते थे, इस वक्त वही रेशियो अगर हम एस्टिमेटली बात करें, 90% लोगों के जुबान पर योगा प्राणायाम आ चुका है इस पेंडेमिक के तहत। तो इसके लिए सबसे ज्यादा मैं जोर देना चाहूंगी, अगर योगा की बात की जाए तो ब्रीदिंग पर। कैसे काम करती है ये ब्रीदिंग स्ट्रेस को कम करने में? बहुत वंडरफुल काम करती है विद लॉजिक। बात करेंगे हम कि जैसे ही हम ब्रीदिंग को डीप करते हैं, नॉर्मली हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना पोस्चर चेंज करते हैं, यहाँ हमारा थोड़ा सा झुकाव हो जाता है इस तरह से, या फिर हम कमर को झुका के ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठने की बजाय, तो हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारा श्वास लंग्स में ना जाकर फूड पाइप के जरिए एब्डोमेन में जाता है। जैसे ही वो श्वास पेट में गया तो पेट में एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस हो जाएंगे आप। जैसे ही आप गैस्ट्राइटिस होंगे, गैस्ट्राइटिस होने से स्ट्रेस आएगा नेचुरली। तो इसका अगर चेन का उल्टा कर दिया जाए कि पहले हमने ब्रीदिंग गलत ली, उसके बाद हमें गैस्ट्राइटिस हुआ और उसके बाद हमें स्ट्रेस आया, अगर उल्टा करें, आपको इस पेंडेमिक के तहत किसी भी रीजन को, किसी भी पॉइंट को उठाते हुए स्ट्रेस आ रहा है, जैसे ही आपके माइंड में स्ट्रेस आया,
उसके बाद आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, कुछ ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन होगा स्ट्रेस से। जैसे स्ट्रेस होगा आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में तीनों एक पूरक है और जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए करें क्या? मेरी बात ज्यादातर प्रैक्टिकल रहेगी कि हम बात सारा दिन हम मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूरा दिन, लेकिन हमें करना क्या है? उसके लिए हमें डीप ब्रीदिंग को डीप करना है। वो क्या कैसे करेंगे उसको हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लूंगी। ओम चैंटिंग के हम 3 तरह से 3 फेज में अभ्यास करवाते हैं। उसको करने के लिए हमें अपनी कमर और गर्दन को एकदम सीधा और दोनों हाथों को इस मुद्रा में, इसे हम ज्ञान मुद्रा का नाम देते हैं, अपने अंगूठे को तर्जनी अंगुली से लगा लीजिए और अपने घुटनों तक रखिए, घुटनों से आगे नहीं ले जाएं। लंबा गहरा श्वास लें। इस तरह से साउंड करते हुए आप 8 से 10 बार अगर इस ध्वनि का निरंतर अभ्यास करते हैं, देन सेरोटोनिन हार्मोन्स की सीक्रेशन बढ़ जाएगी, डोपामिन की बढ़ेगी एंड कॉर्टिसोल की कम हो जाएगी। ये रिसर्च में पाया गया है। इसी का दूसरा जो फेज है वो है महाप्राण ध्वनि। उसको हमने मुंह को बंद रखते हुए 3 बातों का ध्यान रखते हुए करना है। आप अपने होठों को मिलाए रखें, जीभा को तालू से लगा दें, दांतों को हल्का सा खुला रखें। आप साथ में कीजिए, वंडरफुल, बहुत गुड फीलिंग आएगा आपको। कीजिए, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। लंबा गहरा श्वास, तो ये थी हमारी महाप्राण ध्वनि का अभ्यास। इस दौरान क्या होता है, आपके मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियां झंकृत हो जाती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन गुड हार्मोन्स की इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही सेरोटोनिन हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ेगी वैसे ही हैप्पीनेस खुद ब खुद आएगी, स्ट्रेस का लेवल डाउन चला जाएगा। इसका तीसरा फेज है ओम की ध्वनि का। आपको ओम शब्द को 3 अक्षर में डिवाइड करते हुए चैंट करना है, अ उ म। जब आप अ का साउंड करें तो अपने नाभि पर ध्यान रखें, जब आप ओ का साउंड करें तो अपने हृदय पर ध्यान रखें, जब आप म का साउंड करें तो अपनी दोनों भौं के बीच में, आईब्रोज के बीच में, यहां जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां ध्यान रखें। चलो लेट्स डन करेंगे। हम अपना लंबा गहरा श्वास लेंगे, इस प्रकार से इन साउंड्स को अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, जब शाम को आपको करना है तो प्रयास रहे कि डिनर आपका 7 बजे तक हो जाए और 9 o'clock के करीब आप अपने बेड पर, जहां आप सोना चाहते हैं वहीं बैठकर इसको करें। तो जो इस टाइम स्टूडेंट्स में एंड अदर पर्सन्स में, जो इस टाइम अभी डॉक्टर्स के लेवल पे जो बात चल रही थी, एंजाइटी का जो टॉपिक चल रहा था, उसमें वंडरफुल काम करता है। मैंने स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओसीडी इन तीनों पेशेंट्स पर नेचुरोपैथी एंड योग के द्वारा इन्हीं साउंड से बहुत अच्छा क्योर होते हुए देखा है। साथ में अगर बात की जाए डाइट की, तो डाइट के द्वारा अगर आप ठीक होना चाहते हैं, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि फियर को, अब शायद सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि डाइट को चेंज करने से फियर कैसे दूर होगा, ये तो मेंटली हमारी सोच है। लेकिन अभी मैंने जो बात किया था कि जैसे ही आप गैस्ट्राइटिस होंगे तो गैस बढ़ने से, आपके माइंड पर प्रेशर जाने से भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसके लिए आप कोशिश करें, स्टूडेंट्स को भी मेरी यही दरख्वास्त है कि वो 12 बजे तक कम से कम एल्केलाइन डाइट पर रहें। एल्केलाइन डाइट के अंदर आपका स्प्राउट्स आ जाता है और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स एक ऐसी कैटेगरी है कि जो सुबह स्कूल जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही थी, इवनिंग क्लासेस जा रही थी, ट्यूशन जा रही थी, बहुत अच्छा वर्कआउट था, कैलोरीज बर्न हो रही थी। इस वक्त वो एक 4 दीवारी के अंदर है और पूरा दिन स्क्रीन, नोटबुक्स और बुक्स, 3
टॉपिक्स हैं उनके पास, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर उन्हें अपने आप को इस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि जिसके पास जो था वो बढ़ गया, अगर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ बुरा वक्त जरूर है, लेकिन ये बहुत सुधार लेके आएगा उन लोगों में जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज रोजाना आ रही हैं, उसमें ज्यादातर एंजाइटी एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए योगा, डाइट और नेचुरोपैथी की अगर बात की जाए तो उसके लिए नेचुरल वॉक, नेचुरल ग्रीन ग्रास पर चलना और नेचुरोपैथी के अंदर एक मड पैक दिया जाता है, आपको और कुछ भी नहीं मिलता। स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलता। घर पे मुल्तानी मिट्टी एक मिट्टी के मटके में घोल के रख दीजिए परमानेंट, तीसरे चौथे दिन उसको बदल दीजिए और उसका लेप अपने पूरे पेट पे करिए, कभी अपने स्पाइन रीजन पे करिए, पूरे स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर उल्टा लेट जाइए और मिट्टी का लेप करिए, एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल डाउन चला जाएगा। बहुत बढ़िया रिम्पल जी, आपने बताया कि भी किस तरह से हमारा जो रूटीन है उसमें मेडिटेशन, उसमें ब्रीदिंग, उसमें डाइट, उसमें योगा, इन सब का अगर कंपोजिशन रहेगा तो वी विल बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, लाइफ स्टाइल में या जो हमारी रूटीन है, और विशेष रूप से क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, तो बच्चों की दिनचर्या में कोई और आप बात जोड़ना चाहते हैं कि अपने रूटीन में उनको ये चीजें शामिल करनी चाहिए, तो कुछ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। मेरा सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि अपने को अनम्यूट ही रखें, आप लोग अनम्यूट ही रखें, तो बार बार म्यूट अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। यस डॉक्टर साहब। Thank you, sir. So, first of all, I agree with Dr. Sandeep Rana, Dr. Manju, and Dr. Rimple. Whatever they have told, we should apply all the things which they have suggested. Like Dr. Rana ने कहा कि we should be thankful for what we have got in life. Dr. Manju ने कहा कि भी physical distancing बढ़ाएं और social distancing कम करें, और Dr. Rimple ने बड़ा अच्छा बताया कि हम योगा और प्राणायाम करें। जहाँ तक योगा प्राणायाम की बात है, अब तो हमारी जो साइकियाट्री की बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं वो वेस्टर्न बुक्स हैं सारी। उन लोगों ने भी प्राणायाम को नया नाम देके और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कह के वो लोग करवा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा योगा और मेडिटेशन प्राणायाम है वो रियली बहुत इफेक्टिव है टू एलिविएट एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड अदर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स। हम लोग बात करते हैं फिजिकल पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लेकिन हम लोग मेंटल पोल्यूशन की बात नहीं करते। और मेंटल पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे लिए फायदेमंद भी है, एंड दैट इज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करने वाले के ऊपर है, वो अच्छा करे तो उसके लिए अच्छा है, और गलत इस्तेमाल हो तो माइंड पोल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से कितने ही बच्चे पबजी का शिकार हुए, कितने स्टूडेंट्स एंजाइटी का शिकार हुए, फेसबुक पे किसी ने अनफ्रेंड कर दिया तो डिप्रेशन हो गई, किसी ने कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो डिप्रेशन हो गई, या कोई क्रिटिसाइज हो गए, है ना, गलत कमेंट्स आ गए तो स्ट्रेस आ जाता है। तो जहाँ तक एक्टिविटीज़ की बात है, लाइफस्टाइल की बात है, तो हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्टिविटी शेड्यूलिंग। हम लोग अपने पेशेंट्स को कहते हैं भी आप अपनी एक्टिविटी शेड्यूलिंग करो, जैसे OCD में, एंजाइटी, वो ही चीज़ हेल्दी लोगों पे भी लागू होती है। और अभी क्योंकि हम लोग एक तरह से लॉकडाउन में हैं, हमारी मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं। पहले हम लोग दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, रेस्तरां में जाते थे, मूवी देखने जाते थे, वो सब कम हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि अनजाने में ही बहुत सारा टाइम हमारा मोबाइल पे या स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे लगने लग गया, और हमें एहसास नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं। तो वी शुड बी अलर्ट कि हमने जो स्क्रीन टाइम है उसका भी एक डिसिप्लिन रखें, उसको एक लिमिट में रखें कि इतने घंटे से ज़्यादा मैंने स्क्रीन पे टाइम नहीं लगाना, नंबर 1। नंबर 2, सोने और जागने का टाइम जो हमारा नियम था ऑफिस या कॉलेज या स्कूल जाने का, वही रखें। उसके बाद ये बहुत, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट एंड प्रोएक्टिव दैट हम चाहे इंडोर में फिजिकल एक्टिविटी करें, जॉगिंग करें,
या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, वो ज़रूरी है, या घर के पास कोई खुली जगह है या छत पे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक हेल्दी डाइट, नो डाउट। और जैसे हम अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, उसी तरीके से हम उन लोगों के साथ एक रेगुलर टाइम रखें शाम का, हमने उनसे बात करनी ही करनी है। तो वो एक बड़ा अच्छा एक हेल्दी मैकेनिज्म बन जाएगा हमारा, एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग बन जाएगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाएगा, जिससे कि हम काफ़ी हद तक अपने आप को मेंटली फिट रख पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैडम मंजू अग्रवाल जी से मैं थोड़ा अगले मुद्दे की बात करूंगा। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि एक वर्ड आजकल चल रहा है इंफॉर्मेशन पेंडेमिक, या इसको इन्फोडेमिक भी कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन पेंडेमिक का मतलब कि कहीं इधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ फेसबुक से आ रही है, कुछ टीवी पे भी बहुत सारे चैनल है जो हर समय कोरोना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारा करते रहते हैं। तो उसके वजह से भी कुछ एंजाइटी, फियर, इन सब पे फर्क पड़ता है क्या? और अगर पड़ता है तो कैसे हम उसको हैंडल कैसे करें, इस इंफॉर्मेशन पेंडेमिक को कैसे हैंडल करें? देखिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और क्योंकि अभी जो है न्यूज नहीं रही है। न्यूज का मतलब पहले होता था कि आपको फैक्ट्स बताना, अभी न्यूज क्या हो गया, ओपिनियन बताती है। और कोई एक चीज शुरू हुई, सारे चैनल्स उसके बारे में बात करने लगते हैं, एंड बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि इसका मेंटल हेल्थ पे इस इंफॉर्मेशन का क्या असर पड़ रहा है। क्यों इतना ज्यादा डेथ 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 डेथ। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था, जो मैंने वो पॉडकास्ट बनाया उसमें भी मैंने ये कहा है कि मुश्किल से 2 या 3% है जो शायद डेंगू से भी कम है। और उसके अलावा अभी हम जब देख रहे थे सुसाइड को, 1,35,000 2018 में सुसाइड्स हुए हैं, 1,35,000 एक साल में, और जाने कितने सालों से होते चले आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी हम डिप्रेशन की पर बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से इतने मरे इतने मरे इतने मरे, तो दिमाग में जो जा रहा है दैट इंफॉर्मेशन दैट पीपल आर डाइंग इफ एनीबडी हैज कोरोना, हमारा जो प्रोसेसिंग हो रही है हमारे माइंड से और जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी बढ़ रही है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड डजंट हैव एनालिसिस, एनालिटिकल नहीं है। हमारा कॉन्शियस माइंड एनालिटिकल है, लॉजिकल है। लॉजिक उसको ये बता रही है कि देखो कोरोना होगा तो बस गए, और बेड भी नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, क्राइसिस बहुत ज्यादा है। बिकॉज न्यूज जो है वो क्राइसिस को फोकस कर रही है, पॉजिटिविटी को नहीं फोकस कर रही। इवन जब वो कहते हैं 48% रिकवर कर गए, 52 रिकवर कर गए, दैट इज नॉट द करेक्ट डेटा, बिकॉज वो टोटल में अभी तक जितने रिकवर कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। बट अगर आप वैसे देखें तो रिकवरी रेट इज अबाउट 97%। तो जब हम क्या हम फोकस करके क्या बता रहे हैं, मैं तो बिल्कुल मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया है। और इसका एक इलाज ये है कि चूज व्हाट यू वांट टू सी, चूज द न्यूज दैट गिव यू पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। डू नॉट, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते चैनल्स को। तो हम अपने को तो कंट्रोल कर सकते हैं, हमको जो अच्छा लगे, जिसको देख के हमारी एंजाइटी नहीं बढ़े, जिसको देख के हमारा मन को खुशी हो, उसको देखिए। कुछ अच्छी, आजकल तो इतना सोशल मीडिया जैसे है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, जियो टीवी है, जाने कितने टीवी है। आप कुछ अच्छी पॉजिटिव फिल्म्स देखिए। और यदि समय हो तो मैं एक नॉर्मन कजन का केस बताऊं। डू आई हैव 1 मिनट? यस यस श्योर। ओके, सो नॉर्मन कजन जो था वो इस समय यूक्ला में प्रोफेसर है, एंड इसको माइस्थीनिया, शायद माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया था, कोई इस तरह की बीमारी हुई थी, आई डोंट। और उसमें उसका नेचुरली पेन बहुत बढ़ता जा रहा था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। एंड उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, कोई उसको ज्यादा से ज्यादा डोजेज ऑफ पेन की देते चले जा रहे थे, पेन और बढ़ रहा था, डोजेज और बढ़ रही थी, पेन और बढ़ रहा था। ये मेंटल हेल्थ और डिजीज में भी ये कॉम्बिनेशन अक्सर देखने को मिला है। तो उसने कहा कि जब भैया इसका इलाज नहीं है, तो डॉक्टर से उसने बात की, उसने कहा ये तो आप मानते हैं ना कि पॉजिटिविटी एंड लाफ्टर चेंजेस द माइंडसेट एंड सीक्रेट्स गुड हार्मोन्स। उन्होंने कहा हाँ मानते हैं। फिर एक डॉक्टर ने आउट ऑफ द वे जाके परमिशन दी उनको, कि उसने कहा कि हॉस्पिटल इज नॉट अ प्लेस टू रिकवर, सो ही टुक अ रूम आउटसाइड द हॉस्पिटल, और उसने चार्ली चैपलिन की मूवीज देखना शुरू किया,
उन्होंने जो है बहुत सारी जोक्स की किताब मंगवाई और पूरे 6-6, 7-7 घंटे उन्होंने अपने को इस तरह एंटरटेन किया दैट ही स्टार्टेड enjoying and laughing a lot. और जब उन्होंने ये किया तो डॉक्टर्स वर सरप्राइज टू सी कि उनका जो पेन था और उनकी जो बीमारी थी वो एकदम मिराक्युलसली उसके सिम्टम्स कम होने लगे and he recovered and he is now professor in the UCLA University and he has given कि there is a healing system in the body which we do not talk about. We talk about nervous system, digestive system, दुनिया भर के सिस्टम की हम बात करते हैं, बट हमारा एक बिल्ट इन हीलिंग सिस्टम है जिसकी हम बात नहीं करते. तो आज कोरोना टाइम में हमें उस हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने की जरूरत है, चाहे वो हम प्राणायाम से, जैसे डॉक्टर रिम्पल ने कहा या डॉक्टर साहब ने कहा, रूटीन से करें. डॉक्टर संदीप ने कहा किस तरह से पॉजिटिविटी को हम लाएं. तो हमको अपने हीलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, उसकी जिम्मेदारी कहीं हमें खुद लेनी पड़ेगी, बिकॉज एनवायरनमेंट जिस तरह का है उस पर डिपेंड होके हम ये नहीं कर पाएंगे. सो मेरा एक यही मैसेज है कि इंफॉर्मेशन को लॉजिकली और आप चूज करिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए. बस उतनी इंफॉर्मेशन ले जो आपको अलर्ट करने के लिए ठीक हो. क्यों डॉक्टर संदीप, आर यू विद मी? बिल्कुल. yes, I agree with you. मैडम ने जो बात कही डॉक्टर साहब संदीप राणा जी, इसी की कंटिन्यूएशन में अभी एक मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑफिसर की एक स्टेटमेंट पढ़ी. उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सीइंग द स्टोरीज ऑफ रिकवरी, वी नीड टू शिफ्ट नैरेटिव्स अवे फ्रॉम नंबर ऑफ डेथ्स टू नंबर ऑफ रिकवरीज. यस यस, पॉजिटिव स्टोरीज हैं, लोगों ने कैसे एक दूसरे की हेल्प की है, कैसे गरीबों को भोजन दिया गया है, इस तरह की जो पॉजिटिव स्टोरीज है उनको आगे आना चाहिए. इसके बारे में डॉक्टर साहब राणा जी क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, और साइंटिफिक है कि सकारात्मक सोच से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है. तो जैसे अभी बातचीत चल रही थी कि जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, जो रिकवरी की स्टोरी हैं, या डॉक्टर मंजू जो बता रही थी इस दौरान की जैसे कितनी क्रिएटिविटी बाहर आई, तो जो सकारात्मक पहलू है जीवन का उस पे बातचीत करना, उसके बारे में चर्चा करना, उसको शेयर करना, वो चीज बाहर आना. अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा. लेकिन ये सोच सकारात्मक होगी कैसे? जैसे अभी ये बात हो रही थी कि हमारा जो है लोगों से सोशलाइजेशन है, हमारा संवाद है लोगों से, तो बहुत जरूरी है कि हम उस संवाद को बना के रखें, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी भी माध्यम से हम संवाद को बना के रखें. लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने से संवाद बना के रखें. जो क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक है कि मेरा मेरे से संवाद कैसा है, ये डिटरमिन करता है कि मेरा दूसरे से संवाद कैसा होगा. ऐसे तो जो क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक है, अगर ये इम्प्रूव होगी, मैं अपने बारे में कुछ बेहतर सोचूंगा, अपने बारे में कुछ अच्छा सोचूंगा. अब अपने बारे में अच्छा कैसे सोचूंगा? जब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पॉजिटिव होगी, इनपुट पॉजिटिव होगी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से है, चाहे वो बुक्स के माध्यम से है. जब मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूंगा, जब मैं अपनी ताकत के बारे में अवेयर हूंगा, जब मैं उस स्ट्रेंथ के अनुरूप अपनी हॉबीज को नर्चर करूंगा, तो जब जहाँ एक एप्रिसिएशन का माहौल होगा, जब मेरे पे कमांड होगी, तो सबसे जरूरी है कि मेरा मेरे से संवाद सकारात्मक हो, तभी मेरा दूसरे से सकारात्मक हो सकता है संवाद. अगर मेरा मन परेशान है, मेरा मन अंदर से दुखी है, परेशान हूं मैं, तो मैं बाहर भी वही चीज एक्सप्रेस करूंगा. तो इस प्रोसेस में मैं ये कहना चाहता हूँ सोशलाइजेशन में कि हम खुद से जुड़े, अपने स्वभाव में रहें, अपनी क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो. हम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जो अपने बारे में सोचते हैं. अब लोगों की फीडबैक कई बार हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डिटरमिन कर देती है कि किसी ने तारीफ कर दी तो कॉन्फिडेंस में आ गए, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो डिप्रेशन में चले गए. कमांड दूसरे की, कंट्रोल दूसरे के पास ही रहा. ताकतवर वो है जिसका कंट्रोल उसी के पास है, वही सकारात्मक हो सकता है. तो मेरा मानना इसमें ये है कि एज वी थिंक सो वी बिकम. जैसा हम सोचते हैं वैसा सही होने लगता है. हमारे थॉट से इमोशंस चेंज होते हैं, और वो सारा जो जैसे डॉक्टर रिम्पल कह रहे थे कि जो हमारी केमिस्ट्री है ब्रेन की या बॉडी की जो केमिस्ट्री है, वो उससे चेंज होने लगती है. तो एक सकारात्मकता का माहौल बने, और जो गिवन सर्कमस्टांसेस में चीजें बेहतर हैं और सकारात्मकता का माहौल बनता है,
हम जैसे ये बात हो रही है कि जैसे विचार होंगे वैसा सही सब कुछ होगा। अब हम विचारों को अपनी पसंद से चुन सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम उनको देख सकें। जैसे डॉक्टर रिम्पल ने कहा कि योग से, मेडिटेशन से चीजें बेहतर होती हैं। इस प्रोसेस में हम अवेयर हों अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने विचारों के बारे में। अगर कहीं कोई नकारात्मकता है, उसका कारण क्या है, हम उसको रीवैलिडेट करने की कोशिश करें, उसके बारे में जागरूक हों। तो जितना सकारात्मक होंगे, सोच होगी, उतनी हमारी बेहतर होगी फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। और ये सकारात्मकता तभी बढ़ेगी जब हम जागरूक होंगे और जब एक्सेप्टेंस का माहौल होगा। उसी से हमारा फैमिली और सोशल सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि ना तो सिचुएशन हमारे हिसाब से चलेगी, ना लोग हमारे हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। लोगों के स्वभाव में अंतर है और सिचुएशंस की अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि लोग जैसे हैं ऐसे ही हैं, परिस्थितियां जैसी हैं ऐसी हैं, अगर कहीं बदलाव हो सकता है तो मेरी सोच में हो सकता है, और मेरी सोच में तभी हो सकता है जब मैं उसके बारे में अवेयर। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर मंजू ने सेल्फ हीलिंग की बात की, आपने सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉक, सेल्फ एप्रिसिएशन की बात की। डॉक्टर रिम्पल जी, मैं एक आपसे, क्योंकि अभी ऑनलाइन स्टडीज का काफी ज्यादा स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेस या आंखों में स्ट्रेस, इस तरह के भी कई इश्यूज आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं। तो कोई आप नेचुरोपैथी के एंगल से या योग के एंगल से कोई रिलैक्सेशन थेरेपी सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए? हाँ जी, नेचुरोपैथी एंड योग के एंगल से बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स का सिचुएशन ये है कि उनको मेंटली स्ट्रेस इसलिए हो रहा है, अभी मैंने जो जिक्र किया कि वो बंद है, अपनी एक्टिविटीज बाहर आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे पूरा दिन। दूसरा रीजन है कि उन्हें पूरा दिन स्क्रीन के आगे हैं, बाहर की हवा ही नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो एक पूरा दिन जो अभी बहुत देर से हमारी डिस्कशन चल रही है पूरे न्यूज के साथ, सारा दिन ये न्यूज वो न्यूज, अगर बाहर जा भी रहे हैं तो साथ में कोई अगर मिल रहा है उनका दोस्त रिलेटिव, तो किसी भी मुद्दे पर बात ना होकर सिर्फ ये बात कि कितने केसेस बढ़े, बस। तो जब अंदर है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, अगर बाहर जा रहे हैं तो भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसके लिए योग, नेचुरोपैथी कैन डू वंडर्स। अगेन आई एम सेइंग, करें क्या, प्रैक्टिकल की बात करूंगी। करना ये है कि इस वक्त जो आईज पर स्ट्रेन आ रहा है, उसके लिए अगर आपके घर में लॉन में ग्रास है तो प्रतिदिन 10 मिनट घास पर नंगे पांव जरूर चलें। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, आई एक्सरसाइज, आईज को स्ट्रेच करें और बंद करें। 3 मिनट की पामिंग जरूर करें। पामिंग का अर्थ है कि आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अच्छे से, खूब अच्छे से रगड़ना है, हीट लाएं अपने हाथों के अंदर और इस तरह से आंखों के ऊपर रख दें। उसके बाद अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों की पुतलियों को ब्लिंक करें, फिर जोर से बंद करें अच्छे प्रेशर के साथ, फिर खोल दें, बंद करें, खोल दें। तो धीरे धीरे फिर अपनी आंखों को खोलिए, इसे पामिंग कहा जाएगा। नंबर 2, आई कप लें, उसके अंदर या तो रोज वाटर डालें। दिन में 3 बार स्टूडेंट्स को जरूर करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरे पेशेंट जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, तो या तो रोज वाटर डाल के आई डिपिंग करें, और या फिर त्रिफला के पानी को रात को मिट्टी के कुल्हड़ में भिगो दें और सुबह उसको कपड़े से छान दें। आपका 3 से 4 दिन का वाटर तैयार हो गया, उसे फ्रिज में रख दें। जब भी आंखों पे स्ट्रेन फील हो, अपना आई कप लिया, उसमें पानी डाला और आंखों को ब्लिंक किया 3-4 मिनट के लिए। उसके अलावा आंखों के स्ट्रेन को कम करने के लिए सुबह जब सूर्योदय हो, सनराइज हो, उस वक्त किसी भी पेड़ का पत्ता लें। ज्यादातर पीपल का अगर पत्ता लेते हैं तो बेटर है। पीपल का पत्ता अपनी आंखों के आगे इस प्रकार से लगाएं और उसके द्वारा आप सन रेज को देखें। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आईज को स्ट्रेसलेस करने का, एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। और उसी तरह से इवनिंग में जब सन डाउन जाता है तो उस वक्त करें। तो ये रही आईज को रिफ्रेश करने की बात। कुछ देर के लिए अपने आप को स्ट्रेसलेस, आईज को स्ट्रेसलेस करने के लिए इस तरह से बैठें और आंखों को एकदम बंद करें और आंखों के ऊपर 15 मिनट के लिए गीला टॉवल एकदम
मटके के पानी का ठंडा टॉवल आंखों के ऊपर रख दें, तो वो एक नेचुरोपैथी की हाइड्रोथेरेपी जिसे बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी के द्वारा आप कैसे अपने आप को रेजुविनेट करें। आइस के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। कुछ नहीं करना, टॉवल को गीला किया, 3-3 मिनट बाद आप टॉवल को रिंस करते रहें, फिर डिप करते रहें पानी में। 15 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखें और आपका पूरा चेहरा ही रेजुविनेट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन को कैसे स्ट्रेसलेस करें, रिफ्रेश करें। बहुत देर से हमारी बहुत सारी साइकोलॉजी से जुड़ी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा सभी डॉक्टर्स का सुनकर। लेकिन नेचुरोपैथी, डाइट और योगा से क्या करें कि ब्रेन रिफ्रेश हो जाए। पहला जो मेरा अभी टॉप गया था, उसके अंदर जो हमने 3 तरह की जो ओम चैंटिंग बताई, आप कल से ही स्टार्ट कीजिए, आप खुद देखेंगे कि इसके मोस्ट वंडरफुल रिजल्ट है। उसके अलावा ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए योगा निद्रा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपको अपने आप को सेल्फ कमांड देनी होती है। उसके लिए योगा मैट बिछाकर आप ग्राउंड से टच करता हुआ योगा मैट नीचे जमीन पे करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जमीन पर योगा मैट बिछाकर लेट जाएं, अपने दोनों पांव, दोनों हाथ और अपने पूरे आपके पांव के पंजे से लेकर हेड तक, हेयर्स तक आपका पूरा शरीर एकदम ढीला हो जाएगा। उसको आप अगर चाहें तो मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कीजिए, योगा निद्रा। उसके अंदर अलग अलग ऐप्स आएंगी, तो उस पे भी आप जाकर उनकी साउंड ऑडियो सुनते रहें और पांव से लेके सिर तक आपका पूरा शरीर इतना रिलैक्स हो जाएगा कि जितनी आपको 2 से 4 घंटे की नींद जो रिलैक्सेशन देती है, वो 10 से 15 मिनट की योगा निद्रा आपको रिलैक्स करेगी। क्योंकि नींद के दौरान कुछ लोगों को साउंड स्लीप नहीं है, कुछ लोगों का विवरिंग माइंड है, तो इस दौरान जो आपकी नींद है उस दौरान आपको पूरा फ्रेश फील नहीं हो रहा, चाहे आप सो रहे हैं फिजिकली। लेकिन योगा निद्रा के दौरान ना आपको कोई स्वप्न आएगा और ना ही आपका कोई जो बॉडी ऑर्गन है वो पूरा लूज रहेगा, ढीला, एकदम शांत। तो जब बॉडी ऑर्गन्स एकदम ढीले होंगे तो आप 15 मिनट में इतना रिजुविनेट फील करेंगे जितना आपको 2 से 3 घंटे की निद्रा कर रही है। तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज में यही होता है कि मैम हमारे पास वक्त नहीं, मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स 12-1 बजे तक हम स्टडी कर रहे हैं और फिर उठना भी है, तो कुछ शॉर्ट में बताइए। तो इसमें योगा निद्रा इज द बेस्ट वे टू रिजुविनेट योर ब्रेन योरसेल्फ। तो सबसे बड़ी बात है कि योरसेल्फ ये आपकी मुट्ठी में है। आपने मोबाइल की ऐप डाउनलोड की या फिर खुद सीख लीजिए। आपने पंजे से शुरू होना है और लास्ट हेड तक जाके अपने एक एक बॉडी ऑर्गन को कमांड करना है, ढीला हो रहा है, शांत हो रहा है, इस तरह से। उसके अलावा कुछ मुद्राएं हैं जिनको मैं आज प्रैक्टिकली बताना चाहूंगी, जैसे कि आपकी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के द्वारा आंखों पर भी इफेक्ट आता है, गुड इफेक्ट, और ब्रेन भी स्ट्रेसलेस होता है। क्या करेंगे उसके लिए, आपको अपनी लास्ट 2 फिंगर्स इस तरह से अपने अंगूठे से टच करनी है, पहली 2 उंगली सीधी, 10 से 15 मिनट अगर प्रतिदिन कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि 15 मिनट ऐसे बैठना नॉर्मल पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए मैं एक सजेशन जो मैंने प्रैक्टिकली इन दिनों में योगा सेशंस ले रही हूँ, जो मैंने देखा है, उसमें आप ये कीजिए कि कपालभाति प्राणायाम अगर आप सुबह करते हैं योगा के दौरान तो 5 मिनट ये मुद्रा लगाए रखें। और रही बात बाकी के टाइम की, वो आपको मैनेज करना होगा। 10 मिनट आप अपने आप को ये सोच के ये मुद्रा लगाए रखें कि मेरा मेडिटेशन चल रहा है। जो लोग पाठ पूजा करते हैं मंदिर में बैठ के 15 मिनट तो लगाते ही होंगे, तो उस दौरान इस मुद्रा को कर सकते हैं। दूसरी जो मुद्रा है वो है हमारी नागा मुद्रा, वो भी ब्रेन को स्ट्रेसलेस करने में बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या करेंगे, आप अपना दाहिना हाथ इस तरह से नीचे, बायां हाथ ऐसे ही, बायां अंगूठा और दायां अंगूठा, आपने दाएं अंगूठे से बाएं अंगूठे को दबाना है। आप इस तरह से देखेंगे मुझे, आपने बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे से प्रेस करना है। यह मुद्रा सिर्फ 8 मिनट में ही आपकी बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स को आउट कर देगी। फ्लश आउट योर टॉक्सिन्स विद नागा मुद्रा ब्रेन को रिलैक्स करेगी, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। टॉक्सिन्स आउट करने के लिए आपके पास फिजिकल वर्कआउट नहीं है, पार्क में आप जा नहीं सकते, रोड पे सैर कर रहे हैं तो शायद आपको शाय फील हो रहा है। स्टूडेंट्स की बात है, मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, मैम रोड पे वॉक करना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो घर पे आप 1 घंटा योगा करें, योगा के अंदर ये मुद्राएं करें। तीसरी जो मुद्रा है वो है अंजलि मुद्रा।
अंजलि मुद्रा, इस वक्त जो क्वेरीज और आ रही है वो एंजाइटी एंड वायलेंस की आ रही है कि पेरेंट्स के साथ बच्चों के जो आपस में मनमुटाव बढ़ रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस बताया डॉक्टर साहब ने, तो उसी तरह से जो पेरेंट्स के साथ बच्चों के क्लैशेस हो रहे हैं, तो उस दौरान स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। इस तरह की जो आ रही हैं क्वेरीज, उसके लिए बच्चों के लिए जो अंजलि मुद्रा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या करेंगे, बाईं हथेली नीचे दाएं ऊपर, इस तरह से आप इस मुद्रा को बनाएंगे और अपने घुटनों के बीचों बीच रख देंगे और आंखों को बंद करके इस वक्त आपको हम की साउंड करनी है। तो ये मुद्रा है अंजलि मुद्रा। इसके बाद हम करेंगे कश्यपना मुद्रा। जैसे गन की एक मुद्रा होती है, बच्चे, छोटे बच्चे जब आप देखते होंगे इस तरह से टिश्यू टिश्यू करते हैं ना, तो सेम समथिंग लाइक दिस। क्या करेंगे, आपने अपनी सभी अंगुलियों को मोड़ लेना है इस तरह से, और पहली अंगुली, दोनों तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे और आपका दायां अंगूठा नीचे और बायां ऊपर, इस तरह से। इसमें जो मुद्रा बनाई, लेकिन मुद्रा का लॉजिक क्या है, एक तरह से ये भी एक्यूप्रेशर है। आपने अपना दायां अंगूठा इधर प्रेस कर रहे हैं और बायां अंगूठा इधर प्रेस कर रहे हैं। जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे ही आपका ब्रेन रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन मुद्राओं को अपनी डेली लाइफस्टाइल में, जरूरी नहीं कि आपको इन 4-5 मुद्राओं को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है, आप सिर्फ 2 मुद्रा रोज करें। उसके अलावा अनुलोम विलोम तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम को जैसे ही आप करते हैं, ब्रेन के ऊपर वंडरफुल रिजल्ट आता है स्ट्रेसलेस होने में। जैसे ही घर में कोई मनमुटाव हुआ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, क्योंकि सब घर पर है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये कोई एक नॉर्मल बात है, कुछ क्लैशेस तो होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस दौरान बच्चों को यही आप ज्ञान दीजिए, बताइए कि आप स्ट्रेसलेस होकर एकदम या तो इनमें से एक मुद्रा लगा लीजिए या फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। उसको भी मैं करने की विधि बता रही हूँ आपको। उसी वक्त बच्चों को करवाइए, 5 मिनट में बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर फिर भी ना हो तो नेचुरोपैथी की एक विधि है, बच्चे को पेट के बल लेटा दीजिए और एक पैन में ठंडा पानी लीजिए, अगर ले सकते हैं तो आइस क्यूब्स भी ले लीजिए, उसमें टॉवल डिप करें, टॉवल को रिंस करें और बच्चे के यहाँ C1 से, जो रीजन है हमारा सर्वाइकल रीजन, वहां से लेके 2 इंच चौड़ा टॉवल आप नीचे लंबर पोर्शन तक रख दीजिए, सिर्फ 7 से 10 मिनट के लिए। वंडरफुल काम करती है ये। हाइड्रोथेरेपी है नेचुरोपैथी के अंदर, कोल्ड हाइड्रोथेरेपी। तो कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा स्पाइन रिलैक्स होगी। जैसे ही स्पाइन का पोर्शन रिलैक्स होगा, ब्रेन अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। कैसे करेंगे उसे, उसका प्रैक्टिकल देखिए। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और पहली 2 उंगली माथे के बीच रखेंगे। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास लेंगे। कोशिश करेंगे, प्रयास कीजिए कि 5 सेकंड में श्वास लें और 6 या 7 सेकंड में श्वास को छोड़ें। क्या करेंगे, श्वास लेंगे, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। जिस नॉस्ट्रिल से आपने श्वास को छोड़ा है उसी नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। ये था पहला फेज नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अब मैं दूसरा फेज बताने जा रही हूँ। रिम्पल जी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? बस ब्रीफली कर रहे हैं सर। दूसरा जो फेज है उसमें आपको श्वास को रोकना है। कैसे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, रोका, आपने श्वास को रोक दिया, एक्सहेल कर दिया। तो फर्क क्या, जब आपने श्वास को रोका तो जो ऑक्सीजन आप साथ के साथ एक्सहेल कर रहे थे, वही ऑक्सीजन अगर आप 10 सेकंड के लिए भी श्वास को रोक पाते हैं तो 10 सेकंड के लिए वो जो ली हुई ऑक्सीजन है, आपने इनहेल की जो ऑक्सीजन, वो आपके लंग्स को प्योर कर रही है और डिटॉक्सिफाई कर रही है।
तो ये फर्क है नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहले और दूसरे फेज का। तो ये सब टूल्स थे हमारे द्वारा, नेचुरोपैथी, योगा और डाइट के द्वारा छोटे छोटे टूल्स हैं जिनके द्वारा आप अपने ब्रेन को स्ट्रेसलेस कर सकते हैं। रिम्पल जी के पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और बहुत ही नॉलेजेबल सारी बातें बताई है। तो मुझे लग रहा है कि हम एक पूरा फुल फ्लैश सेशन भी रख सकते हैं कभी, कैसे मुद्राएं हो सकती है, किस तरह से नाड़ी शोधन हो सकता है, योग निद्रा हो सकती है। ये सारे के सारे टूल्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। इनमें से बहुत सारे टूल्स मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत अच्छे हैं। अभी हम अपने डिस्कशन के एक लास्ट सेक्शन में आते हैं, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये 1 आवर 15 मिनट्स का ही है। जैसे अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो की है एक तरह से प्रिवेंशन की, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फेमस सेइंग है ही है। यानी जब तक हम में से कोई कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हुआ है और ना हो, उसके लिए हमने ये सब चीजें की है। परंतु सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा भी है जो किसी न किसी वजह से कोविड-19 की गिरफ्त में आया है। तो अभी थोड़ा सा हम उन पर फोकस करेंगे कि अगर किसी फैमिली में कोई मेंबर कोविड-19 पॉजिटिव हुआ है तो उस समय उसको मेंटली किस तरह की फॉर्म में रहना चाहिए और क्या उसकी सोच होनी चाहिए ताकि उस समय वो निराश ना हो, हताश ना हो। उसके बाकी फैमिली मेंबर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, और आसपास के जो उसके बाकी साथी हैं और जो उसके फ्रेंड सर्कल में हैं उनकी उस समय क्या रोल होना चाहिए फ्रॉम मेंटल वेलबींग पर्सपेक्टिव। तो इस पर हम सभी पैनलिस्ट की राय लेना चाहेंगे एंड डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, यस डॉक्टर साहब प्लीज। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हम सबको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और इसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि नंबर ऑफ कोरोना केसेस तो बढ़ेंगे। अभी 25,000 26,000 के बीच में हो गया है पर डे का आंकड़ा। और अभी जो लेटेस्ट एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि ये अगले साल तक 2 लाख पर डे भी हो सकते हैं। बट देखिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, एंक्शियस नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू फेस इट। और इससे सवाल इसलिए अच्छा है कि अब जब होगा कोरोना तो वो इंसान क्वारंटाइन में भी जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी, होम आइसोलेशन होगा। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने अपने घरों में तैयारी रखें कि अगर ऐसा हो जाए हमारे किसी सदस्य को अनफॉर्चुनेटली, तो हमने कैसे उससे मैनेज करना है। बिल्कुल। और बहुत सारी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं, जो एक भारत सरकार का विभाग है। तो हमें ICMR की साइट पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो तैयारी रखें। प्रिवेंशन की बात तो हो ही गई कि हम सैनिटाइजेशन करें, है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, डाइट अच्छी रखें, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखें, वो तो प्रिवेंशन है। और अगर हो जाए तो फिर उसके लिए हम तैयारी रखें, अपने घर में एक आइसोलेशन रूम, एक एरिया ऐसा रहे जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल हो सके। फिर वो बंदा जो आइसोलेशन में जाएगा उसके लिए हमें उसकी फिजिकल नीड्स का पहले ध्यान रखना है, उसको परेशानी ना आए। उसके लिए जो जो डेली नीड की चीज़ें हैं वो परिवार के सदस्य सभी मिलके और तैयार रखें। उसकी निर्भरता हमारे पे रहेगी हर चीज़ में, खाने की, पीने की, नहाने की, तो वो सब इंतज़ाम ज़रूरी है। उसके बाद नो डाउट initial few days will be very stressful for that person. I have seen it. Being a doctor, मुझे OPD करनी पड़ती है, ये मेरी ड्यूटी है, तो मुझे भी बीच बीच में क्वारंटाइन होना पड़ता है। आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर मैं 48 घंटे भी आइसोलेट होता हूँ तो
बहुत खराब फीलिंग आती है घर में रहते हुए। सो उसमें फैमिली मेंबर्स को ये साइकोलॉजी समझनी है कि दूसरे बंदे की सोच सेम नहीं है जैसी हमारी है। वो फिजिकली भी हेल्दी है, जो कोरोना पॉजिटिव है फिजिकली हेल्दी है, उसको कोई फीवर या कुछ नहीं आ रहा, या फीवर आ भी रहा है तो भी कोई ऐसी खराब उसकी फिजिकल हेल्थ खराब नहीं होती। तो वो जो कोरोना पॉजिटिव है वो ही अपीयर्स फिजिकली हेल्दी, but mentally he is under tremendous stress, and if he has to live for 14 days in isolation, just imagine, ऐसे लगेगा जैसे किसी जेल में बंद है, किसी कैद में है, आप दरवाजे की सीमा लांघ नहीं सकते। कमाल, हाउ पेनफुल इट कैन बी। दिस इज साइकोलॉजिकल। जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, शुरू शुरू में जैसे एमआरआई की मशीन आई थी ना, मैंने भी एमआरआई करा, तो वो एक टनल सी होती है, उसमें लिटा के टनल में डाल देते हैं, तो इतनी एंग्जाइटी होती है उसमें, वो बयान नहीं कर सकते, तो क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग आ जाती है, घुटन। तो परिवार के सदस्य उसके साथ फोन पे बात करें, वीडियो कॉल करें, कोई शीशा हो तो उसमें एक दूसरे को देखें, शीशे के अक्रॉस द ग्लास, है ना। कोई घर में पेट है उसको भी दिखाएं, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, मतलब उसको यूं लगे कि मैं वो चीज़ हम लाइव देख रहा हूँ। ये नहीं कि वो टीवी पे लगा हुआ है पेशेंट है जो, या मोबाइल पे लगा हुआ है, तो दैट इज नॉट हेल्दी थिंग। तो जो घर में काम हो रहा है, बच्चे को एक्टिविटी कर रहे हैं वो दिखाएं। अच्छा, फिर कोई गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं आपस में, बिल्कुल वो करें। और कीप ऑन मोटिवेटिंग द पर्सन। ये आम लोग नहीं समझ पाते जो कोरोना पॉजिटिव वो कितने स्ट्रेस से गुजरते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मैडम मंजू क्या कहना चाहेंगी इसमें? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं और एक्सीलेंट टिप्स दी हैं, और जो उन्होंने लास्ट में बताया जो कि हम लोग का भी विषय है कि मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन एंड मोटिवेशन बाय फैमिली मेंबर्स। तो लगातार पेशेंट्स खुद से भी बोले, मेरा अपनी सेल्फ टॉक को हमें अपने बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जैसा इन्होंने कहा कि मोबाइल जरूर, उसको एक अच्छा मोबाइल जरूर दें, और एक ऐसी जगह जरूर रखें जहाँ खिड़की हो, जहाँ वो थोड़ा बाहर भी देख सके, ग्रीनरी देख सके। अगर ऐसा संभव हो तो जरूर करें, पता नहीं संभव होगा कि नहीं, बट संभव हो तो ये जरूर करें। और उसकी सेल्फ टॉक जो है, माई इम्यून सिस्टम इज गुड, आई एम रिकवरिंग मोर एंड मोर एवरी डे, I am recovering more and more every day. My immune system is becoming strong, and I'm absolutely becoming finer and finer and better. Instead of एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगा, उसकी जगह ये कंटिन्यूअस सेंटेंस में यदि आप बोलते हैं, और बाकी बाहर के लोग भी इस तरह उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि, और उसको भी मना करें कि ज्यादा वो न्यूज ना देखे, क्योंकि टीवी, कोशिश करिए कि उसके यहाँ टीवी भी लगा हो जिससे एंटरटेन कर सके, बट उसको भी मोटिवेट करिए कि डिप्रेसिंग मूवीज देखने से, न्यूज देखने की जगह कुछ पॉजिटिव चीजें वो देखे। स्टैंड अप कॉमेडी देख सकता है, डिसेबल करके रखें, देख सकते हैं जी, उस टीवी में न्यूज चैनल्स को डिसेबल करके रखें, डिसेबल कर दीजिए अगर हो सके तो, डिसेबल करवा दीजिए कि वो, क्योंकि जब घबराहट होगी ना तो आदमी और न्यूज लगाएगा। जब हमें देखें अभी क्या हाल है, देखें क्या होता है, और जैसे वो न्यूज देखेगा दिमाग में ये आएगा, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। एंड दिस डेथ की एंजाइटी, चाहे लाख हम कहें क्या करना है, मरना है मर जाएंगे, बट फिर भी जो डेथ की जो एंजाइटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। एंड डेस्टिनी को भी थोड़ा सा हम वो कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज गुड इन माई डेस्टिनी, एवरीथिंग इज गुड इन माई डेस्टिनी, और डेस्टिनी में जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट माई डेस्टिनी एंड आई इन्वोक ऑल रिसोर्सेज to live my destiny peacefully and happily. I think ये भी एक आप बता रही थी डॉक्टर रिम्पल, एक ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी तरीका है कि मॉर्निंग में उठ के आप बाएं हाथ जो आपकी डेस्टिनी का है, I accept my destiny with responsibility, and राइट हैंड जो आपका फ्यूचर का है, I invoke all resources to live my destiny peacefully and happily. तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपका सेल्फ कंट्रोल, जो अभी डॉक्टर संदीप ने भी बोला
कि हमें अपने लिए जिम्मेदारी लेनी होगी. आई इन्वोक ऑल रिसोर्सेज टू लिव माई डेस्टिनी हैप्पीली एंड जॉयफुली. तो अगर इस तरह की कुछ टेक्निक्स उसको बताएं, डॉक्टर रिम्पल की भी सहायता दें, डॉक्टर गुप्ता की भी सहायता दें, डॉक्टर संदीप राणा की को भी उनसे बात करवाते रहें, तो निश्चित रूप से दैट पेशेंट विल कम आउट वेरी हैप्पीली एंड जॉयफुली. जैसे हमारा आज का पैनल है वो फुल प्रूफ पैनल है, उससे जी? सारी चीजें, हमारा जैसा आज का पैनल है जी दैट इज जी, फुल प्रूफ पैनल तो बड़ी मल्टीपल इसमें वो है स्किल्स, हाँ, मल्टीपल स्किल्स हैं और वो सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है. ठीक है. आपने बहुत ही, संदीप जी और प्रताप सिंह जी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया पैनल चुना है, थैंक यू जिसके हम भी पार्ट हैं, तो हम भी ऑनर्ड हैं. चलिए, तो संदीप जी मैं बिल्कुल अपने डिस्कशन का लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ. जैसे मैडम ने भी कहा और डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा कि जो कोविड पॉजिटिव हो गया है उसके बारे में, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए हम अपने कैंपस में हैं, हम अपने मोहल्ले में हैं, गली में हैं, अगर हमारे गली मोहल्ले में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसको देखने की नजर क्या हो हमारी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आपने कई न्यूज सुनी होगी कि लोग नेगेटिव होकर भी आ गए परंतु उनको घुसने नहीं दिया, लेकिन कई जगह उनका फूलों से सत्कार भी किया. दोनों तरह की न्यूज हमने सुनी है. इस बारे में क्या अप्रोच होनी चाहिए सोसाइटी की, कैसा रहना चाहिए? इसमें मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब कि जैसे कोविड पर्सन्स के बारे में हमें स्टिग्मा नहीं रखना है. जितना स्टिग्मा ज्यादा होगा उतनी ही उसको हमें मदद करने में दिक्कतें आएगी. तो एक तो स्टिग्मा नहीं रखना. दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कोविड पेशेंट के बारे में बात हो रहा था अभी कि किस तरीके से वो अपनी हेल्प कर सकते हैं, तो जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, उसको जानना जरूरी है. मान लो हो भी जाता है पेशेंट को दिक्कत हो जाती है कोविड की, तो वो ये समझे इस बात को कि कितना अच्छा रिकवरी रेट है, मतलब हम इससे बेहतर हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं. मतलब वो अपने बारे में ये कमांड अपने आप को बार बार दे कि इससे चीजें बेहतर हो सकती हैं. और सुबह जो है अगर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव अफर्मेशन से करे, जैसे प्रोफेसर मंजू ने कहा था, ठीक है, जैसे डॉक्टर कलाम ने 5 स्टेटमेंट्स का एक पॉजिटिव अफर्मेशन कहा, आई एम द बेस्ट, गॉड इज विद मी, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, आई एम हेल्दी. कुछ हम अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन दें. एक इसमें ये है कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हैवी हो जाती है, परेशानी ज्यादा होती है, तो हम सिर्फ जैसे सुबह अगर हम 3 मिनट का एक मेडिटेशन कर लें, जिसमें पहला मिनट हम क्या करें, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को वॉच करें. जैसे ही हम अपनी ब्रीदिंग को वॉच करेंगे हमारे थॉट का प्रोसेस स्लो हो जाता है. सेकेंड मिनट में हम क्या करें, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करें कि जो चीज हमारे पास है, यार ये तो है, बहुत सारे लोगों को ये सुविधा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ये फैसिलिटी भी नहीं है, जो भी अच्छा है मतलब उसके लिए थैंकफुल हूँ, उसको वो करें. और अगले 1 मिनट में जो है हम कि आज पूरा दिन मैंने क्या करना है, चाहे छोटी छोटी कुछ भी एक्टिविटी करनी, चाहे हम क्वारंटाइन सेंटर में भी हैं, उस 1 मिनट में थोड़ा सा उसको प्लान कर ले. और जो भी वो एक्टिविटी करे अगर वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं. जैसे जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान अगर वहीं पे होगा तो नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग आपको तंग नहीं करेगी. दूसरा, फैमिली और फ्रेंड्स या सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है. जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अगर पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस भी आता है तो वो ये मान के चलें कि भाई किसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये इरिटेटेड है या इसमें एंशियस है, इसकी वजह से इसके बिहेवियर में चेंज आया, तो वो लगातार उसको बैकअप करते रहें, मोटिवेट करते रहें, पॉजिटिव सपोर्ट उसको मिलते रहे और समाज की तरफ से कोई सोशल स्टिग्मा ना हो, एक एक्सेप्टेंस हो. जैसे बाकी बीमारियां हैं, बाकी दिक्कतें हैं, बाकी फ्लू है, कोरोना भी ऐसे है. और जैसे प्रोफेसर मंजू ने कहा कि बहुत सारे केसेस में तो रिकवरी रेट इतना भी नहीं है जितना हमारे यहाँ. और एक अच्छी बात यह है डॉक्टर साहब, अभी एक मैंने एक रिसर्च का हवाला दिया था आपको कि कैसे मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है. उस रिसर्च में ग्लोबल डाटा था, ये जून जुलाई लास्ट में पब्लिश होगा. इसका एक ये डाटा कुछ हमने उस रिसर्च में, मैं कुछ शामिल था उस रिसर्च में. उसमें क्या आया कि जो इंडियंस का जो रिकवरी रेट है, मतलब हम भारतीयों का जो रिकवरी रेट है, ये भी पूरी दुनिया में बहुत अच्छा है. मतलब हमें जो एबिलिटी टू बाउंस बैक है ये बहुत बेहतरीन है. तो जो चीजें अच्छी हैं उसके बारे में हम ज्यादा करें और स्टिग्मा ना रखें इसके बारे में.
तो हमारे जितने भी स्टूडेंट जूम पे जुड़े हुए हैं और फेसबुक लाइव पे भी जुड़े हुए हैं, सभी के मैसेज एक के बाद एक आ रहे हैं कि इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. दे आर एक्सप्रेसिंग देयर थैंक्स टू ऑल द पैनलिस्ट फॉर देयर इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयरिंग. और अभी हम कुछ 2-3 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी अभी लेंगे. तो अभी मैं वॉलंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि if they have collected the questions on behalf of the participants, they can come on the stage, they can make their video on and they can ask. So Nitya and Nehal, you can make your video on and you can ask the question on behalf of students if you are having any questions. Nitya, are you hearing me? Yes, sir. Yes. Yes, Nitya, please ask. Actually, there was a girl named Ramya. Ramya asked a question. She's feeling very low these days. और उसने मेंशन किया कि वो बैठे बैठे रोने लग जाती है अपने ही आप. तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? किससे पूछना है? रम्या. नहीं, पैनलिस्ट बहुत सारे हैं ना, किससे पूछना? नहीं, she didn't mention that. ठीक है, तो आप में से जो बताना चाहे बता सकते. जैसे कई बार क्या है डॉक्टर साहब, जैसे जो कई बार लोनलीनेस की फीलिंग जो है या कुछ पर्पसफुलनेस जो है कि मैं कुछ बेहतर नहीं कर रहा हूँ या अकेला हूँ या मेरा रूटीन जैसा पहले नहीं था अब हो गया है या पहले से कोई थोड़ा बहुत स्ट्रेस में था और थोड़ा एग्जैजरेट हो गया इस दौरान, उस वजह से भी ये इमोशनल बर्स्ट आउट हो जाते हैं. तो इसमें जरूरी है कि किसी न किसी पर्पसफुल एक्टिविटी में अपने आप को वो एंगेज करे, अपने दिन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करे, शेड्यूल करे. और ये बात जरूर मान के चले, क्या नाम है उसका बिटिया का? रम्या ये मान के चले कि जो ये परिस्थितियां हैं ये टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है. कुछ समय के बाद चीजें फिर वैसी हो जाएंगी जैसी हैं. तो हमें किसी भी टेम्परेरी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा आहत नहीं होना है और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी पर्पसफुल काम में रिस्ट्रक्चर करना, अपने आप को हमें एंगेज करके रखना. ठीक है, नेक्स्ट नित्या. Sir, one more question from Muskan Goyal. She is asking how to reduce anger. This is the most common question. हाँ जी. कौन बोलेंगे? I am giving answer. हाँ, yes, रिम्पल जी प्लीज. Anger, बेटा जानना चाहेंगे उस बच्चे की एज क्या है? इन्हीं के बराबर की होगी. एज बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे. 15-16 साल. एंगर को कम कैसे करना है? एंगर को कम करने के लिए अपने विचारों को सात्विक कीजिए. सात्विक का मतलब पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लेंथी कुछ नहीं. समथिंग लाइक जो योग की कुछ मुद्राएं जो अभी शायद आप जुड़े हुए थे, देख रहे थे, उनमें से सिर्फ एक मुद्रा सेलेक्ट कीजिए और सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए. उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा कम नहीं हो रहा, तो उन सिचुएशंस को प्रतिदिन विजुअलाइज कीजिए कि आपको किस सिचुएशन में ज्यादा एंगर आता है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही आप. कुछ सिचुएशंस कुछ इस तरह की बनती हैं प्रतिदिन जिनको आप एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे या कर नहीं पा रहे. तो साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहे तो वो भी मिल सकते हैं, नहीं तो खुद कीजिए कि आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए पूरा दिन में, नाइट में जाके विजुअलाइज कीजिए कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. अगर इसी वजह से या इस पेंडेमिक के तहत उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि ये कुछ दिन और लेगा, कुछ मंथ्स और लेगा. तो अगर आप बहुत शॉर्ट सोचकर चले थे कि मार्च से शुरू हुआ था, हमें अप्रैल निकाला, मई निकाला, जून निकाला, तो पहले ही कुछ लंबा सोचकर चलिए कि हमें इतने मंथ और निकालना होगा. और दूसरा, प्रकृति का नियम है, चेंज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. एक चेंज है, जो भी है चेंज है. इस चेंज के अकॉर्डिंग आप अपने शेड्यूल को सेट कीजिए, इस चेंज के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटीज को सेट कीजिए. क्योंकि अब आपको कुछ एक्टिविटीज चेंज करने का अगर चांस मिला है तो आप कर नहीं रहे. आपको क्या फर्क क्या पड़ा है? मान लीजिए इकोनॉमिकल डाउन फील कर रहे हैं, आपको मेंटली डाउन फील हो रहा है, आपकी स्टडी में भी बहुत लॉस हुआ है, लेकिन कुछ प्लस भी हुआ है. अगर आप पूरा दिन उन प्लस को विजुअलाइज करेंगे तो गुस्सा कम आएगा, एंगर कम होगा.
बहुत बढ़िया। कुछ मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। यस यस डॉक्टर मंजू। कुछ सिंपल चीजें जो डॉक्टर रिम्पल ने बताई बहुत इफेक्टिव होंगी निश्चित रूप से। नाड़ी शोधन करिए और भी चीजें जो आपने बताई। इसके साथ आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि क्योंकि जिसको एंगर आ रहा है वो अक्सर उसको ऐसा लगता है हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, या हमारे बस में नहीं है। तो अगर वो 1 मिनट के लिए आंख बंद करके वो ये सोचे कि एंगर मेरे को आ रहा है क्योंकि मेरे अंदर बहुत है, तो चलो इसको निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड दैट पर्सन थिंक्स, वो दिमाग में ये विजुअलाइज करे मेरा सारा एंगर मुझे छोड़ के बाहर जा रहा है, मैं इस एंगर को बाहर जाता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। लेट द पर्सन फील कि ये सारा एंगर मुझे छोड़ के जा रहा है और इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कामनेस, पीस, या ये अग्नि की तरह बाहर जा रहा है और पानी, जल इसको रिप्लेस कर रहा है। एक ठंडक मिल रही है, मेरे पूरे बॉडी को ठंडक मिल रही है क्योंकि मैं तो वही दे रही हूँ ना जो मेरे अंदर है। तो मैं चलो आज इसको निकाल ही देती हूँ। तो अगर वो ये विजुअलाइजेशन भी सुबह शाम कर ले, जिस समय एंगर आया और उसको इसका मतलब उस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन है, ये पॉजिटिव चीज है कि उस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बहुत से लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं होता तो वो कुछ नहीं करेंगे, बट जिनको ये रियलाइजेशन है वो ये कर सकते हैं कि चलो मेरे अंदर है, आज मैं इसको निकालता हूँ। जस्ट विजुअलाइज। आप इसको ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि मैं बाथटब में बैठी हूँ और ये सारा एंगर निकल के बाहर जा रहा है और ये पानी मुझे ठंडा कर रहा है। सो ये सब टेक्निक्स हम लोगों ने यूज भी की है एंड अगर जरूरत हो तो हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। और हम लोग बच्चों को तो फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग देंगे। वी कैन टेल देम टेक्निक्स कि कैसे आप जो है चीजों को अपने डील कर सकते हैं, कैसे कौन सी छोटी छोटी टेक्निक्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे खुद नहीं कर पाते तो हम उसको सेशन में करवा देते हैं, तो सेशन में वो आराम से कर लेते हैं, अपने से नहीं कर पाते। तो ये सारी टेक्निक्स बहुत उनको हेल्प करती हैं। तो बेटा ये कर सकती हैं आप। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है और हम इसमें फेसबुक पेज पे हमारे सभी पैनलिस्ट के बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देंगे, तो कोई स्टूडेंट अगर शेयर करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे तो वो पूछ भी सकता है। इसमें दो ही पॉइंट डॉक्टर साहब मैं बहुत ब्रीफ में ऐड करता हूँ बच्चे का। बिल्कुल। एक तो पॉइंट ये है कि एक्सपेक्टेशन का लेवल कम करे जिससे एंगर उसका रिड्यूस होगा। दूसरा, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करे, अपने आप को भी माफ करने की टेंडेंसी और दूसरों को भी माफ करने की टेंडेंसी। इसलिए नहीं कि उन्होंने गलती नहीं की, इसलिए कि हमें पीस चाहिए। तीसरा ये है कि जब हम माइंडफुल मेडिटेशन से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर मंजू ने कहा था, जब भी गुस्सा आए तो आईज क्लोज करके देखें कि बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ही आप उन बॉडी के चेंजेस को देखने लगेंगे, एक हिस्सा ब्रेन का देखने में लग जाएगा और एक हिस्सा गुस्से में होगा। फिर आप गुस्सा नहीं होगे, आप गुस्से से अलग होगे। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि एंगर का रीजन क्या है, थोड़ा सा माइंडफुली इंट्रोस्पेक्ट करें कि कारण क्या है। उस कारण को अगर हम रिवैलिडेट करते हैं तो गुस्सा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। So now I request Nehal Mittal to make her video on. So Nehal can also ask question if she is having any question. Nitya, आप भी on रहो अगर आपके कुछ question बाकी हैं तो. Yes. Sir, a girl named Ria is asking that she is having sleeping disorders. She can sleep anytime and anywhere. So what can she do? ये तो अच्छी बात है. She can sleep anywhere, anytime. हाँ जी, डॉक्टर गुप्ता आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी। यस यस सर। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक है स्लीप डिसऑर्डर्स जो आजकल हम फेस करते हैं। उसका रीजन फिर वही है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, रात को 12, 1, 2 बजे तक मोबाइल यूज़ करते हैं और फिर लेट उठते हैं। उसके बाद दिन भर भी वो लोग कुछ इस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं कि नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। उस वजह से ब्रेन रिलैक्स नहीं होता। अब
साउंड स्लीप के लिए ये बहुत जरूरी है कि सोने के वक्त ब्रेन रिलैक्स हो। दिन भर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा हो, नेगेटिव कम से कम हो। ओनली देन ब्रेन कैन हैव ए साउंड स्लीप, एंड ए साउंड स्लीप is very important for the brain to rejuvenate itself. It gets tired in whole day and it has to recharge. So a sound sleep is important. We have to follow sleep hygiene to treat any kind of sleep disorder. In sleep hygiene, we have to remember, we have to make a rule that our time of sleeping and getting up should be almost fixed. Best time is to sleep around 10 o'clock, 9 to 10 o'clock, getting up at around 6 o'clock. Sleep of 6 to 9 hours is considered normal. Some people will get fresh in 6 hours, some people will need 9 hours, but most of the people will get fresh in 8 hours. So we should try to sleep 7 to 8 hours in the night, and we should take nap in the daytime. Some people call it a power nap also, taking a short sleep of 15 to 20 minutes max, not more than that. Some people may need to sleep for half an hour or 1 hour, but it should not be more than that. And with that time should also be almost fixed. अगर दूसरे समय में किसी को नींद ज्यादा लाइट वाइट चली I think some connection issue is there. कुछ कनेक्शन का इशू है। हाँ, ठीक है। नेहल, कोई और क्वेश्चन भी है क्या? जैसे Yes, sir. इसी में हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, डॉक्टर। नेहल की जैसे कभी हर जगह बार बार ही नींद आ जाती है ना, तो उसकी वजह ये है कि वो पर्सन जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स नहीं है, और जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत कम है, इस वजह से बार बार नींद आता है। तो पॉइंट ये है कि कुछ रिलैक्सेशन की, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके वो थोड़ा सा सीखे कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखेगा, और जो क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगी रात के समय में, तो फिर दिन में बार बार नींद नहीं आएगी। ठीक है। हाँ जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी। इस क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए सोते वक्त वो बच्चा 10 मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा नमक पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के अपने पाँव को डिप करे 15 मिनट के लिए। इमीडिएट पाँव को बाहर करके उसको पाँव को पोंछ के अपना सरसों के तेल से, तिल के तेल से दोनों तलवों की, फुट पाम की 10-10 मिनट के लिए मालिश करे। साउंड स्लीप होगा श्योरली। गुड। डॉक्टर साहब, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो मैं क्या इजाजत ले सकता हूँ? हाँ, बस 1 मिनट में फिनिश करते हैं डॉक्टर साहब। ओके सर। तो नेहल, कोई और क्वेश्चन भी है क्या? Yes, sir. थोड़ा ऐसा है कि एक बार क्वेश्चन, नेहल एक बार क्वेश्चन एक साथ पूछ लो सारे जो भी है। Okay, sir. सर एक क्वेश्चन तो ये है कि आजकल काफी बोर सा फील हो रहा है, एंड पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एंड करियर को लेके काफी टेंशन भी है, तो हाउ टू सॉल्व दिस? एंड एक है हाउ टू कंट्रोल सैड इमोशंस। चलो डॉक्टर मंजू। जी, पढ़ाई में बोर फील हो रहा है और सैड हो रहा है, ये सब मेंटल स्टेट्स हैं। मेंटल स्टेट्स हैं, यानी कि हम कैसे इसको चेंज करें, या तो अपने हम कर सके तो करें, नहीं तो किसी की हेल्प लें। दो चीजें हैं पॉसिबल इसमें। अगर अपने से आपको करना है तो मैं कहते अभी डॉक्टर संदीप राणा ने भी बहुत सारी टेक्निक्स बताई, मॉर्निंग मेडिटेशन आपने भी बताई, डॉक्टर रिम्पल ने भी बताई, या अफर्मेशन या सेल्फ टॉक को थोड़ा ऑब्जर्व करें। अब हमें ये लग रहा है हम बोर हो रहे हैं, यानी हम बार बार खुद से क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने को है, देखो पहले जाते थे तो इतना अच्छा लगता था, यहाँ जाते थे, इससे मिलते थे, क्या है कुछ करने को, जीवन बेकार हो गया है। देखो नीचे भी वो नर्सेज रह रही हैं, अभी एक एग्जाम्पल भी मुझे मिला, नीचे के फ्लोर में नर्स आके रहने लगी है, अब तो बहुत ही रिस्क बढ़ गई है, अब तो हम नीचे भी नहीं जा सकते। तो ये जो हम सेल्फ टॉक, प्लीज एवरीवन वॉच योर सेल्फ टॉक। हम बहुत सैड हैं, हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, ये हम अपने को बोलते रहते हैं, और 60 to 70,000 थॉट्स हमारी एक दिन में आती हैं, उसमें से 90% थॉट्स हमारी सेम होती हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो जब थॉट सेम होंगी तो फीलिंग सेम होंगी तो बिहेवियर सेम होगा, और फिर हम वैसे ही हमारी पर्सनल रियलिटी या पर्सनालिटी
बन जाएगी। Yes. तो इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो आसान टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं, योगा भी है, बॉडी भी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर वन। पर एक जो हमारे हाथ में टूल है वो है लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग फॉर सेल्फ टॉक। तो अगर आप सेल्फ टॉक की लैंग्वेज को वॉच करें, माइंडफुली वॉच करें, एंड माइंडफुली वॉच करके आप उसको चेंज कर लीजिए। हालांकि उसमें आपको चेंज करने में उस समय लगेगा कि हम तो एकदम ऑपोजिट बोल रहे हैं, बट ओके, यू फील इट ऑपोजिट। आप ये कहना शुरू करिए कि हम खुश हैं, हमारे पास क्रिएटिविटी की बहुत सारी चीजें हैं, हम अपनी बोरियत को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन भी अपने से पूछे, इंस्टेड ऑफ सेइंग हम बोर हो रहे हैं, यू इमीडिएटली चेंज योर क्वेश्चन, हम अपनी बोरियत को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो एटलीस्ट यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस। अभी हमने क्या किया, अपने ऑप्शंस को बंद कर, उसको ढक्कन में, बक्से में ताला लगा दिया। अभी उस बक्से को थोड़ा सा खोलिए और कहिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस है खुश रहने के लिए। एंड यू नो एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू गेट देयर ओन यूनिक रिस्पॉन्सेस। आई डोंट हैव आंसर टू एनी ऑफ दीज। उस व्यक्ति के पास खुद वो रिस्पॉन्स होगा। मान लीजिए हम कहें म्यूजिक सुना करो, हमें म्यूजिक नहीं पसंद बट उसे म्यूजिक पसंद है। हम कहें तुम जो है ये करा करो, किताबें पढ़ा करो, बट नो आई डोंट लाइक। सो वो व्यक्ति जब खुद से अपने ये क्वेश्चंस पूछेगा तो उसको अपने लिए खुद से ऑटोमेटिकली आंसर मिलेंगे, और ये बहुत आसान है। तो जो भी बच्चे ये कह रहे हैं करियर ऑप्शन नहीं दिख रहा, मुझे लगता है कि इस समय करियर ऑप्शंस बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछिए, कौन कौन से नए करियर्स कोरोना ने हमें दिए हैं, कौन कौन सी नई चीजें हमें दी हैं। ठीक है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस क्लोज हुए, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट हैज क्लोज्ड, लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट न्यू हैज स्टार्टेड। सो अपने फोकस को हम चेंज करें, और फोकस को चेंज करने के लिए हम अपनी लैंग्वेज को चेंज करें, और लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछें। व्हाट कैन हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट कैन आई डू, how can I remove my boredom, how can I be free, how can I entertain myself, and I'm sure everyone will get plenty of options. Just keep your mind open. ठीक है, thank you Nehal. So we are running short of time, so we are not in position to take questions of all the students, but I think our panelists have given a wonderful information, knowledge of mental well-being, and I am very, very thankful. Actually, we started this program in April when this lockdown started. We started this program as a life skill webinar series, and we conducted a number of sessions to make our students confident, make our students in mental health, and this is part of that series only. So I'm very thankful to all the panelists who have spared their precious time to participate in this discussion and to make our students aware, and I think students have benefited a lot from today's discussion. So thank you to all. Thank you students and all the Facebook page viewers also who have watched this program on Facebook. So thank you Sandeep ji, thank you. We are also thankful to you, Dr. We are also thankful to Training Placement Cell. Thank you. Thank you very much Sandeep ji. Thank you मैडम। प्रताप जी, और हमें फेसबुक लिंक प्लीज भेज दीजिएगा, तो हम लोग दोबारा इसको, सारी टेक्निक्स आप लोगों ने बताई है तो उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सर।